Good. So, friends, today's agenda is going to be the discussion of the assignment, the detailed discussion of it. So, if you had any queries or questions related to it, we'll be solving that today. And we will also discuss the pros, cons, and meaning of reserves and surpluses, which is also another source of finance. For the long term source of finance, we have got only one left, and few short term sources of finance will be discussed later on. So that's gonna be the agenda for today. But before I move to the items of agenda, let me just show you one image. I'm expecting your active interaction in this image. If possible, try to just decode few events which are uh, which are implied over there, and few financial lessons are also been posted. So that's my humble request for all of you to identify the events happened in the month of August 2021 and the financial lessons we have taken from all those events. Take your 1 minute of time uninterrupted. Let me share the screen with you guys as well. Yes, so as the title itself suggests, it's the top financial lessons from the month of August 2021. And here you have got the screen picture, few events are supposed to be decoded, and few financial lessons are implied there. You are requested to solve this, please. One by one, you may communicate to me that what you have understood. Yes, asking your opinion to online students as well. I hope you are looking at this image carefully. Major events happen as well as to be happened in the month of August 2021. We have taken some financial takeaways from it, so that's why I wanted to showcase this to you. Yes, I like it. Yes, Kaushal. First one, starting with the first one, please. Yes. गोल्ड मेडल जीता, किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने जीता. So that's the event covered, and the financial lesson which I wanted to communicate to all of you is that gold as a commodity cannot be wiped off, cannot be forgotten, because it has still got some really good value. After the emergence of cryptocurrency and the bubble of equity market, it was expected that gold may see a very significant downfall, but it hasn't happened. So once there may be some correction on the equity market, and due to that, there may again be some inflow into a traditional commodities like gold and silver. So no one can write off the gold as an investment avenue. It is still pretty much attractive one. You may go with that. Another financial lesson. Yes, please. This financial lesson is based on 15th August, that is Independence Day. Our country is independent from certain year, but still, I can say that majority of people are not financially free Hmm. because they are doing certain expense before they are earning in the form of credit cards and all, and they at last they end up with huge debt. तो क्या पूरे गफले के साथ पूरा हो जाता है, तो वो डिसिप्लिन के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं. वो कुछ लेसन ऐसा दे रहा है. True. So takeaways from Mr. Niraj Chopra's life, the discipline as it has been stated. Financial freedom comes with lot of sacrifices in expenses.
So that's more sort of the financial lesson we have taken. If we do not want to remain the slave of our expenses, we should try to become independent by reducing it as much as possible. First of all, take away the amount of savings from whatever the income you are earning. It should be a mandatory savings for you. Then, whatever the amount left, it should be first given to the needs, because you cannot sacrifice your needs. Then, in wants, the last priority may be given. And over there, too, you may think about what is urgent and important for you right now as a want, rather than spending on something which is not very much urgent as well as important. Third financial lesson, please. The event happened during the August. Lords, very nice, Mr. Kaushal. So there was a historic test winning by Indian team in Lord's ground. There is a message of compounding too. Let's read the message over there, financial one. Lord will test our patience in long-term investments. 2020 होता है वो कितने समय में खत्म हो जाती है? 3-4 घंटे. तो ट्रेडिंग वगैरह होता है वो 2020 की तरह होता है. ज़्यादा सोचना नहीं है, स्लॉगिंग वॉगिंग करना होता है. लॉन्ग टर्म में आपको एक बार सोच के रिसर्च करके पढ़ गए तो फिर आपको पेशेंस रखना है. क्या रखना है? पेशेंस रखना है. चौथे दिन में रहाणे और पूजा ने जो 200-300 बॉल खेले थे, सिर्फ 30 से 40 रन हुए थे भैया उसमें. सबको लग रहा था कि इंडिया यहाँ पे मैच गंवाने वाला है. 5वें दिन पे पंत ने वहाँ पे विकेट भी चली गई, लेकिन कुछ प्लेयर्स हमारे 9 और 8वें नंबर के पोजीशन पे आके पूरे मैच को जीता के लेके जाते हैं. इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म में वही होता है. हम अपनी पेशेंस लूज करके छोड़ देते हैं, लेकिन फिर अचानक से उसमें ब्रेकआउट आता है. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. 3-4-5 साल के लिए तो हमें सोचने का भी नहीं. आगे बढ़े. अच्छा, वहां से गोलियां निकली. गोलियां निकलते निकलते कहाँ पे पहुंची? अफगानिस्तान में पहुंची. अफगानिस्तान के अंदर एक बबल क्रिएट था. कौन सा वाला था? बबल क्रिएट था. हाँ, तालिबान बबल क्रिएटेड था. लेकिन वो तो तालिबान तो आ गया ना, तो बबल को जाके गोलियां लगी और बबल हो गया बस्ट. तो नए नेक्स्ट फाइनेंशियल लेसन वी हैव टेकन फ्रॉम दिस इज evacuate your funds well before the panic caused by bubble bust. So when you see the bubble is forming up, everyone is optimistic about few stocks or few indexes or few markets. तो उस समय से वहां पे कट लेना ही बेहतर है. ज़्यादा से ज़्यादा अपन कुछ प्रॉफिट गवाएंगे वही, लेकिन जब वो क्रैश होता है तब कोई किसी की भी वो नहीं सुनता. PB and PE valuations of the Nifty as well as the Sensex are skyrocketing. Nifty right now approaching to 17,000, Sensex approaching somewhat near to 56,000. I feel both are pretty much overvalued without any significant improvement in the economy and the long-term indicators. So before there may be a bubble bust, we should evacuate your funds. अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें वहाँ पे पैनिक में जब हवाई जहाज भेजने पड़ेंगे और कुछ पैसे लटकते लटकते नीचे भी गिर जाएंगे. देखो वो भी गिरे हुए हैं इधर. तो ऐसा हमारे पास साथ ना हो, उससे अच्छा पैनिक से पहले ही पैसे अपने इवैक्यूएट कर दे. वो ग्रेट इन्वेस्टर्स कहते हैं ना, जब हर कोई ऑप्टिमिस्टिक है तब निकल जाओ, हर कोई पैनिक में है तब एंटर करो. अच्छा, नेक्स्ट वन, रक्षाबंधन. क्या है फाइनेंशियल लेसन? Some irredeemable bonds give great returns. It's been specifically observed that few bonds have started giving the good returns. So you may explore the possibility of putting the bonds as well in your portfolio, specifically the irredeemable ones. After SEBI has given the guidelines to record the irredeemable bonds now to 100-year bonds. Earlier, the irredeemable bonds were considered as the perpetual life bonds, can never be redeemed at all. But now the SEBI has reclassified that into 100-year bonds. You cannot issue the perpetual ones. You should consider the life of it at 100 years. After that, the significant yield improvements are seen in those bonds. We should explore the possibility of that too. Next one, Janmashtami. What's the financial lesson?
ग्रेट इन्वेस्टर्स आर बोर्न इन ग्रेट अनसर्टेनिटीज। जब हर कोई नेगेटिव बातें करता है, हर कोई पैनिक में है, उस समय पे इन्वेस्ट करने का, क्योंकि दुनिया खत्म होने वाली है नहीं अभी, और हो भी जाएगी तो हर एक के पैसे डूबने वाले हैं, तो आप रहोगे ही नहीं, तो फिर आपको पैसे की क्या टेंशन है तो फिर डालो, पैनिक हो रहे हो तब। तो जब हर कोई पैनिक हो रहा है, तब कोरोना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, मार्केट टूट रहा है, तो डाल देना चाहिए पैसे, बिकॉज ग्रेट इन्वेस्टर्स आर बोर्न इन ग्रेट अनसर्टेनिटीज। जब पूरा वातावरण अनसर्टन हो जाएगा, पृथ्वी टकेगी नहीं टिकेगी, तहस नहस होने वाले हैं सब, गलत लोगों के हाथ में पावर्स हो जाएंगे, तब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो जन्माष्टमी में ऊपर के आते हैं। वैसे ही इन्वेस्टर्स जब कोई पैनिक में होता है, तब भर भर के इन्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? भर भर के इन्वेस्ट करते हैं। So we have seen the financial lessons from it. It was just a creative I wanted to present to all of you. Let's go to the assignment now. I hope everyone would have got the assignment there. Some people have already started working upon it. Let me just tell you that what you are supposed to do in that. Obviously everyone has got the different allocated data against their name. So आपको सिर्फ आपका ही करने की ज़रूरत है, किसी और का करने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉपी पेस्ट के चांसेस अब चले गए। हर एक को अपने खुद के डेटा के ऊपर काम करना है भैया। पहला क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? ईच स्टूडेंट विल वर्क ऑन देयर ओन डेटा, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये सर हमारा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो तो अपन आपके वाले में जाते हैं। लेकिन आप वहाँ पे भी मत ढूंढना, क्योंकि उनके भी डेटा अलग ही है। मैंने रैंडम फंक्शन अपनाया, तो अचानक से अपने हिसाब से वो वेरिएबल्स ले लेता है, मैं सिर्फ रेंज दे देता हूँ। तो उधर भी कॉपी करने का कोई चांस हमारे पास नहीं है। Yes, Mr. Rishit and Mr. Meg had identified few events. Very nice. CFM असाइनमेंट यही है ना अपना असाइनमेंट? हाँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, SIP stands for the systematic investment plan. You people may be aware about it. Basically it's the installment you will be taking, and you are doing some investments on some periodic basis, and we are supposed to find its future value. So find the future value of annuity from the following information. How will you identify whether the annuity is ordinary or due? It's been given to you, invested at the end of the period or beginning of the period. The frequency is also been given to you. The amount of investment on a periodic basis will be different for each individuals. Rate of return expectation is also different. You will convert the rate of return and the number of years into number of periods and rate of return by taking the whatever the compounding frequency given to you. So that's going to be question number 1. Simply apply the FV of annuity formula, find the future value, apply the annuity due or ordinary annuity formula based on whatever the case given to you, and it will be your 1 mark रोकड़ा। 1 mark रोकड़ा। बेटा यहाँ पे गलती नहीं करनी है, हमारी उम्र है पगले, कर ले गलती से मिस्टेक, लेकिन इस वाले में नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ना 10 मार्क हमें ऐसे ऐसे रोकड़े मिलते हैं, और ABCD का समय चला गया। मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बहुत डिफिकल्ट होगा मार्क्स लाना, तो ये 10 मार्क्स हमें असाइनमेंट्स के जाने नहीं देने हैं। इसके बाद में एक प्रोजेक्ट भी आएगा विच विल बी एंटायरली एक्सेल बेस्ड, तो उस समय पे भी आपको बेटा 20 में से 20 सबको आने चाहिए, ऐसी हमारी अभ्यर्थना है। क्या है? अभ्यर्थना। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हाय रब्बा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? From the following information, find the amount of installment to be paid on loan amount taken. You all have taken the different amount of loan. You all have got the different percentage of interest rate. You have got the PV amount too. Amount of loan is basically the PV of annuity.
You will apply the due formula or ordinary formula, and based on that you will find the I amount which is going to be your balancing figure. Yes or no? Is it clear? चलो क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं भैया. ड्यू है कि ऑर्डिनरी है वो देख लेना है. फॉर्मूला का चार्ट आपको ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है, उसमें से आप देख लोगे. प्रिपेयर द लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल मैन्युअली. सर, दिस मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स वी आर गोइंग टू डू मैन्युअली. एक्सेल में करो, बहुत अच्छी बात है रेफरेंस के लिए, लेकिन लिखना मैन्युअली अपने पेन पेपर में है, क्योंकि हमारी एग्जामिनेशन एक्सेल में होने वाली नहीं है, बुक एंड पेन में होने वाली है. तो हर एक को अपने अपने अमाउंट के ऊपर, अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर, अपने अपने इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल क्रिएट करना है. नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आएंगे ज़रा सा देख लीजिए. पहले देखो विधि का. विधि के 5 साल है लोन के, और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी है, तो एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4. तो टोटल हमारे क्वार्टर्स कितने हो गए? 20. तो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के अंदर एंट्रीज कितनी आएगी? 20. रेट को आप क्वार्टरली से डिवाइड करोगे और नंबर ऑफ पीरियड्स को क्वार्टरली से मल्टीप्लाई करोगे. वैसे ही सर अगर वो सेमी एनुअल है तो क्या करेंगे? तो सेमी एनुअल में 7 साल है, तो एक साल में सेमी एनुअल पीरियड्स कितने आते हैं? 2. तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इन द लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल विल बी हाउ मेनी? 14. Rate of interest will be divided by 2. Do not forget that. He has got rate of interest of 12.90% to be divided by 2. To be divided by 2. Yes. 6.45. Very nice. So I hope everyone has got it now. Prepare the loan amortization schedule accordingly. Let's go to the question number 4, my friend. Here you are supposed to find the cost of debt before tax and after tax. अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग हो गया है कि नहीं हो गया? दिख तो नहीं रहा है. इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू देयर ऑनलाइन? वो स्क्रीन शेयरिंग वाला मेरे पास चला गया, इसलिए जस्ट आस्किंग. तो भैया कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स, ये इसकी फॉर्मूला तो हमने देख ली है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. इंटरेस्ट रेट लो, अपना आई कैलकुलेट करो, टैक्स कैलकुलेट करो, एसवी एमवी कैलकुलेट करो. इसके हमने बहुत क्वेश्चंस ऑलरेडी देख लिए, ठीक है. सिर्फ हमें हमारा डेटा के ऊपर ही करना है, किसी और की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है. हमारे पास समय भी नहीं है किसी और की सेवा करने का भैया. अब यहाँ पे आपको राहत है. क्या है? राहत. तो राहत का माल सामान उठा लीजिए भैया. आपके पास 3 क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चंस के थियोरेटिकली कॉन्सेप्चुअली आपको आंसर्स लिखने हैं. आपको समझना है कि 8 मार्क का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के अंदर. तो 8 मार्क के क्वेश्चन में आप कितना कंटेंट लिखोगे, उतना कंटेंट आपको इस असाइनमेंट में लिखना है 1 मार्क में. समझ में आने वाली बात है? आगे बढ़ते हैं. हम बहुत असाइनमेंट्स लेने वाले हैं नहीं. एक असाइनमेंट ये है, दूसरा एक प्रोजेक्ट है. 2 के बाद अपन का CFM का रूब्रिक खत्म हो जाएगा. दूसरा प्रोजेक्ट पूरा एक्सेल के ऊपर आधारित है. किसके ऊपर आधारित है? एक्सेल के ऊपर. चाहते हैं और एक क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में कोई लोगों को लोचे लगेंगे, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करने का. हमारे लिए क्वेश्चन नंबर मायने नहीं रखते हैं. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, फिर आप उसको 8 बोलो कि 9 बोलो, आंसर में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है. यहाँ पे थोड़ी सी आपकी आंखें खुलेगी. क्या खुलेगी? आंखें खुलेगी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कविता याद आ रही है? बहुत सुनी होगी लोगों ने. अच्छा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कविता कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों को याद आ रही है? यस मिस्टर मेक रोड लेस टेकन. क्या थी वो पंचलाइन? माइल्स टू गो बिफोर आई स्लिप. मैं सो ना उससे पहले मुझे माइल्स कैटर करने हैं. तो वो देखते हैं, उनके बीच में डिस्ट्रैक्शंस दिखते हैं. अच्छी नदी, पहाड़, झरने वगैरह आते हैं. एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना होता है. तो वो देखते हैं भैया इतना ज़्यादा मैं ब्यूटी को
यहाँ पे देख रहा हूँ डिस्ट्रैक्शंस मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ पे पहुँचना है ना उसको मुझे भूल नहीं जाना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इधर अपने इस वाले जगह पे लिखेंगे कि हमें कौन से असेट्स हमारे खुद के पैसे से ऑन करने हैं। एंड ऑब्वियसली एवरी वन ऑफ अस वांट्स टू मेक द मनी फ्रॉम our own efforts. We do not want to get the ancestral property, right? Yes, we want to get it, but we do not want to make only out of that. We want to create something out of our own efforts. हमें हमारे खुद के पैसे बनाने हैं भैया। तो मुझे मेरे फाइनेंशियल असेट्स जो मुझे चाहिए आज से 10 साल के बाद, उस सभी के असेट्स के मैं नाम लिखूंगा। सर मुझे कार चाहिए, क्या चाहिए, कार चाहिए, तो मुझे मर्सिडीज कार चाहिए, उसके लिए 50 लाख रुपए चाहिए आज के लिए, तो मैंने वहां पे 50 लाख रुपए लिख दिए। अब आज के डेट पे उसकी 50 लाख रुपए की वैल्यू है। 10 साल के बाद मेरे ये सपने मुझे जब साकार करने होंगे, तब मुझे 50 लाख की जगह पे कितने परसेंटेज कितने रुपए और देने पड़ेंगे, तो इन्फ्लेशन का परसेंटेज भी मुझे लगाना पड़ेगा। सो आई हैव गिवन टू यू, यू विल बी अज्यूमिंग द इन्फ्लेशन परसेंटेज एट 5%. So you will find that after 10 years, what amount you will have to spend to buy the same Mercedes car. Clear है? तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है। FV of price of asset by taking 5% inflation compounded yearly, future value of single cash flow. तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो में फॉर्मूला कुछ ऐसा था, याद आ रहा है? PV 1 + R⁻n। तो 50 लाख रुपए को आप PV ले लोगे और 1 + R को ले लोगे 5%, क्योंकि 5% से उसका ग्रोथ हो रहा है, और N ले लेंगे 10। सो दैट विल बी अ वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 10 years। हाँ नहीं, कैलकुलेशन नहीं दिखाना आपको, सीधा यहाँ पे आंसर ही देना है, ठीक है? अब आपने समझ लो 5 असेट लिए हैं, 10 लिए हैं, 12 लिए हैं, जितने भी असेट्स आपको 10 साल के बाद ओन करने हैं अपने खुद के नाम पे, पापा के दिए हुए पैसे से नहीं, अपने खुद के नाम पे। तो भैया यहाँ पे हम उस सभी का टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल। तो मुझे आया, समझ लो कि 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए 10 साल के बाद। इफ आई वांट टू सेटिस्फाई ऑल माय फाइनेंशियल ड्रीम्स, इफ आई वांट टू ओन दिस असेट्स आफ्टर 10 years, I'll be requiring 1 crore of rupees after how many years? 10 years. So I'm doing the total of this now. Now my next task is, what amount you will have to invest on a monthly basis at the end of each month to get the amount in A after 10 years. मुझे अगर 10 साल के बाद भैया 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे हर महीने कितना कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितना है? 12% है पूरे साल का। तो यहां पे मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा? FV ऑफ एन्यूटी। एन्यूटी क्यों? क्योंकि मुझे हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना है। तो FV ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, I in bracket 1 + R⁻n - 1 डिवाइडेड बाय R। तो फ्यूचर वैल्यू तो मुझे मालूम है, 10 साल के बाद कितने रुपए चाहिए? 1 करोड़। I मेरे पास है नहीं, तो I को मैं फाइंड करूंगा। बाकी जितने भी वेरिएबल्स है वो मुझे दिए हुए हैं। N को मैं, नंबर ऑफ ईयर्स 10 है, मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, क्योंकि मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट चाहिए। और R है वो मेरी 12% एक्सपेक्टेशन है, उसको मैं डिवाइड करूंगा 12 से, क्योंकि मुझे चाहिए मंथली कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो आपका मंथली SIP का अमाउंट मिलेगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का। ठीक है, समझ लो भैया, आपको जरूरत पड़ती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए 20,000 रुपए की। कितने की? 20,000 रुपए की। तो 20,000 रुपए में जो इन्वेस्ट करूंगा महीने महीने, तो मैं क्या सिर्फ उतना ही कमाऊंगा? मुझे मंथली कितना कमाना पड़ेगा, तब जाके मैं 20,000 रुपए सेव करके उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है,
तो मैंने क्या बताया कि भैया आपका जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होना चाहिए ना इन्वेस्टमेंट का, वो 50% होना चाहिए। कितना परसेंटेज? 50% ऑफ व्हाट? ऑफ योर मंथली इनकम। तो say if the 20,000 rupees is supposed to be invested by you, that means you will have to earn on a monthly basis how much? 40,000. That will be over here in the C numbers requirement. क्लियर है? अगर मेरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 15 आया तो मुझे मंथली कितना कमाना पड़ेगा? 30। अगर मैं सर मंथली 30 कमाऊंगा तब जाके मैं कहीं पे 15 इन्वेस्ट करूंगा ना। 50% भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने 50% ले लिया, ठीक है। बाकी के जितने 50% उसमें से अपन अपने खर्चे, EMI, नीड्स, वांट्स, बाकी सब करेंगे। 50% फिक्स है भैया, किधर डालना है? इन्वेस्टमेंट में। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP कर ही दो। तो भैया 40,000 रुपए पर महीने आपकी इनकम होनी चाहिए टू स्पेंड 20,000 राइट इन योर इन्वेस्टमेंट्स। तो फिर पूरे सालाना आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो कितना मेरा पूरे साल का इनकम होना चाहिए? 4,80,000। दैट विल बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ D। तो मैंने मल्टीप्लाई किया उसको 12 से, जो ऊपर का अमाउंट आया उसको। क्लियर है? अब मुझे नीचे अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है कि भैया अगर मुझे सालाना 12 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की जो कोई भी इनकम आ रही है वो अर्न करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा। 100 वर्ड्स का, मिनिमम 100 वर्ड्स का आपको कथा गुणगान वहां पे करना है। क्या करना है? कथा गुणगान। मैं ये करूंगा, मैं स्टार्टअप डालूंगा, जो भी राम कहानी आपको डालनी हो। आई जस्ट वॉन्ट योर विजन, how you will achieve the income of 12 lakhs rupees, 15 lakhs rupees on a yearly basis to satisfy your financial goals after 10 years. Clear है? That will be a part of the last requirement. आपको असेट्स कौन कौन से ऑन करने हैं आप अपने हिसाब से जो भी डालने हैं डालिए। कोई 5 डालेगा, कोई 10 डालेगा, कोई 6 डालेगा, लेकिन 5 मिनिमम है। मिनिमम 5 कोई बोलेगा मेरी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं तो साधु महात्मा संत आदमी हूँ, मुझे तो हिमालय में जाके ऐसे संन्यास ले लेना है, तो भी तुम्हें 5 असेट तो डालने ही है। ठीक है, काम नहीं करना है इसलिए कुछ नहीं डालेंगे, मेरी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बोलो, एक जन मेरे को बोल रहा है मैं 2 रुपए का पेन लेना है, मैं कोई पर डाल, लेकिन तेरे को पॉइंट में नीचे आंसर आएंगे। ठीक है, तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। 2 रुपए का पेन लेना है मुझे, ऐसे लोग होते हैं। बोलो हैं तो मैं बोला फिर मेरे को मंथली अमाउंट तेरा 0.005 पैसा जाएगा ना, तो वो भी मेरे को कैलकुलेशन चाहिए नीचे। तेरे को 2 रुपए का पेन लेना है, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं होना। कंफर्मेशन थ्रू द चैट बॉक्स प्लीज। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस। यहां तक अब कोई असाइनमेंट में डाउट नहीं रह जाता है। ठीक है, गुड। Financial planning you will be doing manually in the book. Yes, you want to take the help of Excel, you can definitely, Mr. Rishit, but I will be requiring the PDF where manually you should have drawn or written that format and you should have put your all the entries there. Is it clear? Thank you. Okay, let's move ahead to the reserves and surpluses, my friends. That's gonna be the last long-term source of finance. I'm using the words very carefully. Last long-term source of finance. Last source of finance nahi. So friends, we were there into the sources of finance, right? If you can recall it a bit. Equity capital was discussed, preference capital was discussed, debentures were discussed, loans and borrowings were discussed, and the cost of finance was also found by applying few formulas, right? Now we are moving to the reserves and surpluses. Now can someone tell me what is the meaning of reserves and surplus?
or it may be called as internal accruals. Asking to all of you, you may unmute yourself, online students. ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है भैया? नाम कहीं पे सुना है? और ये सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से हो गया है? रिटेन्ड प्रॉफिट। अच्छा, तो सर ये रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है ना, वो 3 जगहों पे से बनते हैं। पहले तो आपने भैया यहाँ पे बिजनेस शुरू किया है, तो कंपनी अगर पहले से है तो 4-5 साल के लिए ऐसे वैली तो बैठी हुई नहीं है। जो भी पैसा बेचारी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है डिविडेंड का, सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड है, उसको ट्रांसफर करती है इन रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। तो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स ट्रांसफर होते हैं लायबिलिटी साइड पर। समझने वाली बात है। प्लस सम रिजर्व्स आर टू बी क्रिएटेड बाय द कंपनी मैंडेटरीली as well as voluntarily. If you take the examples of banking company, to maintain their statutory liquidity ratio SLR, they will have to create some reserves compulsorily. If you take the examples of the insurance companies, to maintain their liquidity ratios, they will also have to create some reserves mandatorily. After the 2 companies are merged together in the amalgamation readjustment account is to be created for some time to make the adjustments of amalgamation transactions. So some reserves are to be created mandatorily by the companies. Some reserves may be created freely for some specific purposes by the company. हमें है ना 5 साल के बाद ये फर्नीचर लेना है भैया, तो अभी से कुछ ना कुछ रिजर्व प्रोविजन क्रिएट करना शुरू कर दिया। हमें डिबेंचर्स को रिडीम करना है, क्या करना है? रिडीम। तो डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे 10 साल के बाद, तो उसी समय पे पैसे निकालेंगे तो फिर हमारी हालत खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खराब। तो अभी से कुछ ना कुछ निकालते हैं, उसका एक रिजर्व क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, which is also a mandatory kind of a reserve company will have to create. So all those reserves will also be forming a part of your internal accruals. Plus the main important part which contributes the major portion of your reserves and surpluses is the securities premium. What is it, Mr. Kaushal? Securities premium. Securities premium क्या होता है? कुछ सुना है? Yes, Mr. Meghani. फेस वैल्यू के ऊपर जो भी शेयर्स इशू करते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीमियम टेकन. I am using the words carefully. I am using not just the shares, securities. It may be debentures, it may be preference shares, whatever the securities which companies are issuing and distributing, if they are collecting some premium over and above the face value of it, that is transferred in securities premium. Yes. डिबेंचर्स प्रीमियम के इशू होते हैं, क्यों नहीं? हो सकते हैं, प्रैक्टिकली ऐसे होते हैं, क्यों नहीं? मैंने नहीं देखा इसलिए। अगर रिडीम्शन के समय पे मैं 30% का प्रीमियम देता हूं तो मैं इश्यू के समय पे भी प्रीमियम चार्ज क्यों ना करूं? कंपनी नहीं कर रही करंटली। ठीक है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स वर नेवर माय प्रेफर्ड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल, लीगली एज पर द रूल्स इट इज पॉसिबल. अभी किसने किया किसने नहीं किया वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि दैट्स नॉट माय फोर्टे. I am not much into corporate bonds and debentures. I may not be even aware about what kind of corporate bonds right now being circulated. I am putting wholly myself into the equity. That's why. हाँ, लेकिन लीगली पॉसिबल है. तो अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जो एक नीचे लाइन लिया है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया. कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स विल बी सेम एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. Now, cost of equity, there are various methods to find it, right? Ultimately, who has got the right to receive the reserves and surpluses at the time of liquidation? Owners. And in that too, only the equity shareholders, not the preference shareholders.
Even in case of the preference shareholders, their liability is limited only up to the face value of the preference share at the time of liquidation. Once you liquidate all your assets, the first money will be received by the secured liabilities who have created some sort of security on your assets, pledge, hypothecation, mortgage. Then the money will be distributed to the unsecured liabilities. Then the money will be distributed to other stakeholders, say the employees, some outstanding expenses. Then the money will be distributed to the preference capital. Till now, all the people had their fixed obligation. Preference capital को भी आपको उसके फेस वैल्यू से ज्यादा एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है. अब बचा कुचा जितना भी होगा वो कौन लेके जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स. भाई का, दादा का, बाप का, सबका बदला कौन लेगा? फैजल लेगा. तो भाई का, दादा का, बाप का, सबका पैसा कौन लेके जाएगा इधर से? इक्विटी शेयर होल्डर. वो फैजल है ना, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स है. तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस अगर आपके पास अच्छे खासे पड़े हुए हैं भैया, तो उसके ऊपर राइट किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट है. तो फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी वही कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया. इट इज एज गुड एज द मनी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स केप्ट बाय अ कंपनी. इट इज एज गुड एज the money of equity shareholders kept by company. That's why cost of equity and the cost of reserves and surpluses both will be same. Clear है? Clear है? Equity, very nice. I have received one question कि equity issue करने के समय तो expenses होंगे. Reserves है किसके? इक्विटी होल्डर्स. एक्सपेंस तो होगा. अच्छा, तुमने इक्विटी शेयर्स इश्यू किया स्टार्टिंग में. इश्यू प्राइस कौन सी थी? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. फेस वैल्यू प्लस जोमेटो का फेस वैल्यू कितना था? 1 रुपया था. 76 रुपए में 75 रुपीज उन लोगों ने कितना लिया? क्या लिया? प्रीमियम लिया. तो मेजर पैसा जो इक्विटी शेयर होल्डर से आता है वो कहां से आता है? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम किसका पार्ट है? अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है. अभी स्टार्टिंग में वो रिजर्व्स इक्विटी का है. ये कंपनी 10 साल 20 साल पुरानी होगी तो फिर थोड़ी रिजर्व्स ट्रांसफर करने में कॉस्ट लगेगा. अभी देखो इन्फोसिस है, इन्फोसिस के पास बहुत सारा रिजर्व्स पड़ा है. तो वो रिजर्व्स को लेना है तो थोड़ी उसको कुछ कॉस्ट लगेगा. Cost of issue is not there. I agree definitely. When you are utilizing the reserves and surpluses, you don't incur the cost. That's okay. But the thing is, whatever the reserves and surpluses are there, which is kept by a company, it is as good as the money of equity shareholders kept by a company. Equity shareholders expect some percentage of the return from reserves and surpluses too. They don't have the expectations just on their face value. Yes or no? They have the expectations on their face value plus reserves and surpluses, because the reserves and surplus is basically the money of equity shareholders only, owners' money. That's why the expectations of equity shareholders will be the same on reserves and surplus. Clear है? अच्छा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एकदम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं भैया. जिनको नोट्स वगैरह बनानी हो बना सकते हैं, जिनको नहीं बनानी है उनको मेरी बद्दुआ है. नोट्स नहीं बनाते बोलो. एडवांटेजेस नंबर 1, readily available. No need to go to outsiders. As easy as this. No need to explain this point as well. Number 2, represents infusion of additional equity. Now your doubt will be better clarified, Mr. Meghani. It represents the infusion of additional equity in the firm, because equity shareholders have right on remaining reserves of the company after payment of outsiders liability. No issue cost unlike equity. हाँ, इक्विटी की तरह इश्यू कॉस्ट नहीं है, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के ऊपर भी
इक्विटी शेयर होल्डर्स उतना ही एक्सपेक्ट करेंगे जितना वो अपनी फेस वैल्यू के ऊपर करेंगे, क्योंकि उनका ज्यादा पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही जाता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में ही तो ज्यादा कंपनीज चार्ज करती है। जोमेटो के 76 रुपए के इश्यू प्राइस में सिर्फ 1 रुपए का फेस वैल्यू है भैया, 76 रुपए का वो सिर्फ प्रीमियम चार्ज करता है। तो इन्वेस्ट भी वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही करते हैं, तो एक्सपेक्ट भी वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर ही करेंगे। अच्छा, देयर आर फ्यू रेशियोज which are explicitly dependent upon the reserves and surpluses. First one is the book value of the share. Book value of share. How the book value of the share is calculated, my friend? Total assets minus outside liability, what's the net asset? I can also write it like equity share capital plus reserves and surpluses to be divided by number of shares, equity shares. अब जितने रिजर्व्स एंड सरप्लसेस ज्यादा होंगे उतना बुक वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कोई भी कंपनी का बुक वैल्यू ज्यादा होता है तो फंडामेंटली वो अच्छी सिचुएशन में मानी जाती है। फंडामेंटली अगर वो अच्छी सिचुएशन में मानी जाती है तो उसकी इम्पैक्ट कभी ना कभी इक्विटी मार्केट के मार्केट प्राइस में भी जाने वाली है, तो मार्केट प्राइस भी अप होने वाली है। तो भैया ये इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, वो पूरा डिजर्व करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज नथिंग बट द एडिशनल इक्विटी ओनली, इट इज द शेयर होल्डर्स फंड्स ओनली। इसका दूसरा नाम क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस का? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स, इसे कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। अब ये जो बुक वैल्यू है उसके ऊपर और भी बहुत सारे रेशियोज डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट वन इज द पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अगर कंपनी का मार्केट प्राइस 400 है, कितना 400, और बुक वैल्यू आया है 100, कितना? अब ये बुक वैल्यू है वो हमने अकाउंटिंग के तरीके से कैलकुलेट किया, तो हमारे पास पीबी रेशियो कितना आ गया 4 टाइम्स। सिंपल मतलब ये हुआ कि कंपनी की मार्केट प्राइस है वो 4 गुना है उसकी बुक वैल्यू से। तो भैया बुक वैल्यू से अगर नंबर ऑफ टाइम्स तुम्हारी मार्केट प्राइस है तो यहाँ से एटलीस्ट ये तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर है वो ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है कि नहीं। अगर यही अगर 6 टाइम्स हो गया, मतलब कि मार्केट प्राइस हो गई 600 रुपये और आपका बुक वैल्यू है 100 रुपये, आपका शेयर अकाउंटिंग के हिसाब से डिजर्व करता है वैल्यू 100 रुपये, उसके सामने मार्केट में है 600 रुपये, तो आपका पीबी रेशियो क्या हो गया 6 टाइम्स। इट बिकम्स वेरी ओवर वैल्यूड स्टॉक। सर इसके कोई मेजरमेंट मापदंड है? नहीं है। ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन इज टू बी सीन सेक्टर स्पेसिफिक, कंपनी स्पेसिफिक। सम ट्रेंड्स आर ऑल्सो चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले 3 से ज्यादा पीबी रेशियो हुआ करता था तो लोग उसको ओवर वैल्यूड कहा करते थे, अब वो रेशियो 5-6 पे भी लोग नॉर्मल कहा करते हैं। ऐसा नहीं सर, ये अगर किसी को आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना होगा तो कोई कर ही नहीं पाएगा ये रेशियो। आईटी में करना है तो ये रेशियो पे तो कोई कर ही नहीं पाएगा, तो फिर आपको आईटी का अलग से निकालना पड़ेगा। अच्छा दूसरी बात, सी स्टॉक मार्केट इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, इट्स नॉट what you have done in the history. Book value is calculated based on your historical performance of the last year, right? Investors are futuristic in nature. They are interested in knowing that what you will be doing in the future. They are ready to pay you more as well today if you are promising them the good returns in the future. वैसे देखने जाओ तो टेस्ला मोटर्स वगैरह के पीई रेशियो से देखो कहाँ पे जा रहे हैं, कोई इन्वेस्ट ही ना करे उसमें, लेकिन उनको फ्यूचर में एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल दिखाई देता है कंपनी में, इसलिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हाँ मुझे एटलीस्ट अंदाजा आ जाता है कि फंडामेंटली जो हमारी बुक वैल्यू है उसके सामने मेरा मार्केट प्राइस क्या है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भैया। ये कोरोना के बाद जो एक आपको भूचाल दिखाई देता है, एक मेजर इनफ्लो दिखाई देता है स्टॉक मार्केट में, उसका रीज़न ये भी था कि बुक वैल्यू के हिसाब से मार्केट बहुत टूट गया था, तो पीबी रेशियोज निफ्टी के बहुत डाउन हो गए थे एवरेज, तो फिर बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेशन वापस आ गया। बट नाउ
इट्स अगेन इन द बबल। फिर से निफ्टी का एवरेज पी रेशियो 6 से ऊपर चला गया है। नो मार्केट हैज एवर सर्वाइव्ड अबव 6 पीबी रेशियो ऑन एन एवरेज बेसिस इन द हिस्ट्री। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, लेकिन हिस्ट्री ऐसा कहती है कि कोई भी मार्केट 6 के पीबी रेशियो एवरेज के बाद सर्वाइव नहीं हुई है। उसके बाद में उसमें करेक्शंस आए हैं। 4 के नीचे सर्वाइव नहीं होती, 4 से उसको मेजर इनफ्लो मिल जाता है, और 6 के ऊपर सर्वाइव नहीं होती, 6 के बाद उसको मेजर आउटफ्लो सहन करना पड़ता है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अभी भी इंडिया का मार्केट बहुत इमर्जिंग लग रहा है। वो अभी भी अपने फंड्स यूं डाल रहे हैं, इतना डाल रहे हैं। मार्केट्स को एकदम बबल क्रिएट करके रखा है। जब वो अपने फंड्स वापस लेना शुरू करेंगे, तब हमारे म्यूचुअल फंड्स वाले पता नहीं कहाँ से पैसा उठा के इसमें फिर से डालेंगे। फिर से मार्केट क्रैश होने की पूरी संभावनाएं है। आगे बढ़ते भैया, ये हमारी कोई भविष्यवाणी नहीं है। मैं आपको कोई स्टॉक मार्केट का रिकमेंडेशन भी नहीं देता हूँ। इट इज जस्ट फॉर एनालिटिकल एंड इंटरप्रिटेशन पर्पसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट प्राइस है विच इज इंक्लूसिव ऑफ द रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर होल्डर मार्केट प्राइस में इन्वेस्ट करते हैं, दे कंसिडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस इन दैट। सिर्फ फेस वैल्यू नहीं है मार्केट प्राइस। नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल की तो बात ही नहीं है। इनके पास तो कोई वोटिंग राइट्स है ही नहीं। इनफैक्ट कोई इंसान है ही नहीं। इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? शेयर होल्डर्स है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से कुछ पैसा उठा के कहीं पे इन्वेस्ट कर दोगे तो डाइल्यूशन की तो कोई बात है ही नहीं। स्टॉक मार्केट जनरली व्यूज रिटेन्ड अर्निंग्स विद पॉजिटिव कॉनोटेशन। स्टॉक